Hello students, we will discuss inequalities in this lecture. Firstly, we need to understand the basics of inequalities. So first concept, if a number A is greater than number B and you will add K both sides, then the inequality will remain unchanged. Let's take the example. 4 greater than 2. 4 2 से बड़ा होता है. If you will add 1 both sides, it will become 4 plus 1 greater than 2 plus 1. That is 5 greater than 3. 5 greater than 3, which is true. So if 4 is greater than 2, 5 is also greater than 3. Or if we will subtract a number both sides, let's subtract 1 both sides, it will become 4 minus 1 and 2 will become 2 minus 1. So 3 is also greater than 1. So this is very first point that has to be clear in your mind, that if a number A is greater than number B and you add a constant number both sides or you subtract a constant number both sides, then the inequality remains unchanged. A number may be constant or it may be variable, but if you are doing the same action both sides, then inequality will remain unchanged in case of addition and subtraction. Whether you add a number or whether you subtract a number, inequality will remain unchanged. Okay? Yes. Second concept, if A is greater than B, अगर कोई नंबर A B से बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए हम 5 greater than 2 लेते हैं. 5 is greater than 2. हमने दो नंबर्स मान लिए, एक 5 और एक 2, और वी नो दैट 5 is greater than 2. If we multiply both of these numbers by a positive number, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कर लेते हैं, 2 into 3. तो we can easily see that this 15 is also greater than 6. So if we multiply both sides by a positive number, inequality remains unchanged. On the other side, अब इसी को दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लो या -2 से करो, चलो -2 से, तो आप देख सकते हो दिस इज -10 एंड दिस इज -4. कौन बड़ा है, -10 बड़ा है या -4 बड़ा है? ऑब्वियसली -4 बड़ा है, -4 बड़ा है. तो व्हाट वी हैव लर्नड ओवर हियर, if a number is positive by which we are multiplying, then inequality will remain unchanged. So that's why we have written over here Ka is greater than Kb if K is greater than 0. But if the number is negative, then inequality will change. From A to A greater than B, it will become Ka less than Kb because K is negative. Okay, so this is very important point while discussing inequalities. आगे जाके जब हम वेवी का मेथड पढ़ेंगे तो उसमें भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का काफ़ी रोल रहेगा. मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, x plus 1 by x less than 1. तो what you can do over here is multiply both sides by x. It will become 1 less than 0, which makes no sense at all. Okay, so multiplying with x is the wrong step. We can't multiply by x both sides. Why? क्योंकि जो x है वो एक वेरिएबल है. अब आपको उस वेरिएबल के साइन का ही नहीं पता कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है या वेरिएबल नेगेटिव है. अगर हम श्योर होते कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है तो हम दोनों साइड उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे विदाउट चेंजिंग दी इनइक्वालिटी. अगर हम श्योर होते कि वो वेरिएबल नेगेटिव है तो भी हम उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते थे बाय चेंजिंग दी इनइक्वालिटी. बट बिकॉज दिस x इज अनसर्टेन, it may be positive or it may be negative, so we can't multiply by x both sides directly. Okay, in case of inequality. तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. अगर किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी विल चेंज. बट अगर वो नंबर वेरिएबल है, जैसे कि यहां पे वो वेरिएबल x था,
जिसका कि हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इन दैट केस वी कांट डू दिस एक्शन। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है हम आगे जाके सीखेंगे, राइट। दिस वॉज द सेकेंड बेसिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इफ अ नंबर a is greater than b and we raise both numbers to the power m, then inequality will remain same if m is positive, inequality will change if m is negative. Let's take the example लेते हैं। okay, again 4 is less than 6. okay, if you will raise both sides to the power 2, then also inequality will remain same because 16 is less than 36, right? 16 is less than 36, right? Similarly, if we have number, let's suppose क्वेश्चन इज सेम 4 लेस देन 6 और हम पावर जो रेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं -1, ये क्या बन गया 1/4 लेस देन 1/6, 1/4 लेस देन 1/6, इज इट राइट? 1/4 लेस देन 1/6, नो इट इज रॉन्ग, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6। सो हम ध्यान रखेंगे, अगर हम दोनों साइड्स पॉजिटिव पावर से रेज कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अगर दोनों साइड पावर जो हम कर रहे हैं वो नेगेटिव है, इफ m इज नेगेटिव, इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड फ्रॉम हियर a ग्रेटर देन b, इट गेट्स चेंज टू a की पावर m लेस देन b की पावर m। ओके, हमने नंबर्स की एग्जांपल्स लेके भी देख लिया कि बिल्कुल अगर हम पॉजिटिव पावर लेंगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव पावर इनइक्वालिटी विल चेंज। ओके, then we have the next concept of sum of number and its reciprocal. Let's take the number a plus 1/a. We have to talk about this a plus 1/a, and I will prove it कि नंबर प्लस उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो 2 से बड़ा होता है अगर नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हो। इफ नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर तो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा होता है, राइट? तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेट्स प्रूव इट। तो हमें क्या प्रूव करना है, a को एलसीएम ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a² + 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, नाउ एज वी नो दैट इट इज गिवन टू अस दैट नंबर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर आपको ये पता है कि नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इन दैट केस आप a को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट चेंजिंग दी इनइक्वालिटी। अभी हम पढ़ के हटे हैं, इफ अ नंबर इज पॉजिटिव इट कैन बी मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स विदाउट चेंजिंग दी इनइक्वालिटी। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a² - 2a + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा a - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था, हमने मान लिया कि ये सही है, फिर इससे ये आया, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप ये आया, फिर इसको अगर फर्दर मॉडिफाई किया तो ये बन गया हमारे पास, और इसको फर्दर सोचा तो ये बन गया a - 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो a - 1 का जो स्क्वायर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर है, या वो पॉजिटिव होगा या वो 0 होगा, किसी नंबर का स्क्वायर। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, तो फिर ये भी ऑलवेज ट्रू है। तो हमने प्रूव कर दिया कि नंबर प्लस उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो 2 या 2 से बड़ा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, और ये 2 कब होगा, और ये 2 कब होगा, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 कब होगा,
जब a 1 होगा। तो सिर्फ 1 के ऊपर 1 + 1/1 इट इज 2। 1 के अलावा आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, जब आप नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो आपको आंसर पक्का 2 से बड़ा ही मिलेगा। आंसर विल बी श्योरली ग्रेटर देन 2। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर। very very important concept of inequality. Number plus reciprocal is greater than equal to 2 if a number is positive number. You can take any example, you can check it. You can take any positive number and take the sum of that positive number and its reciprocal. Always you will get greater than 2 and it will be equal to 2 only in case of 1. Okay, तो जी ये तो हमने अभी जो बात की है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात की है। अगर ये नंबर नेगेटिव हो देन फिर क्या करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास जो a है वो नेगेटिव रियल नंबर है। उस केस में नंबर प्लस उसके रेसिप्रोकल में क्या रिलेशन होता है? वो -2 या उससे छोटा होता है। -2 या उससे छोटा होता है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, अगर नंबर खुद नेगेटिव हो, राइट? अगर नंबर नेगेटिव हो, यस। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं, लेट्स प्रूव इट, राइट? तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बनने वाला है? a² + 1/a less than equal to -2. This is what we have to prove. Okay, and we are aware that कि जो a है वो एक नेगेटिव नंबर है। a एक नेगेटिव नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 > 2 बट -4 less than -2। ऐसे ही a एक नेगेटिव नंबर है। अगर आप दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, राइट? इट विल बिकम a + 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा बन गया जो कि ऑलवेज ट्रू होता है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो हमने मान के चले थे वो भी ट्रू है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं कि नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 या 2 से बड़ा होगा अगर नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल -2 या उससे छोटा होगा अगर नंबर एक नेगेटिव रियल नंबर है। और आप बता सकते हो ये -2 कब होगा? ये -2 कब होगा? इक्वल टू -2 इफ a इज इक्वल टू -1। अगर a -1 होगा तो ही नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल -2 के बराबर होगा, वरना वो -2 के बराबर नहीं होगा, राइट? तो अब आप बता सकते हो कि जो हमने ये पढ़ा है नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल ये क्या हो सकता है? ये या तो -∞ से -2 में वेरी कर सकता है या फिर ये 2 से ∞ में वेरी कर सकता है, राइट? तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? या तो -2 से छोटा या फिर 2 से बड़ा। ओके, इसके अलावा बीच में ये कभी भी कुछ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास sin x प्लस कोसिकेंट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन का मतलब क्या है? नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। तो आप सीधा बोल दोगे देखते ही कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप बोल दोगे नेवर पॉसिबल। ओके, तो हमने अभी तक 4 बेसिक लॉज पढ़े हैं इनइक्वालिटी के। एक तो हम किसी पॉजिटिव या किसी नेगेटिव नंबर को दोनों साइड ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। फिर मल्टीप्लाई करते टाइम अगर तो नंबर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी विल चेंज इट्स साइन। देन थर्ड पॉइंट वी डिस्कस्ड पावर। अगर हम पॉजिटिव पावर से दोनों साइड नंबर को रेज कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम,
अगर नेगेटिव पावर से दोनों साइड रेज कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी विल चेंज। देन फोर्थ पॉइंट, नंबर प्लस उसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग सच इनइक्वालिटीज। हमारे पास क्वेश्चन है कि x-1 इंटू x-3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बताओ x क्या होगा। आपसे पूछा गया कि x क्या होगा अगर आपको x-1 इंटू x-3 को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम x-1 का बिहेवियर जानते हैं। x-1 हमारा एक लीनियर फंक्शन है x-1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू अगर हम x-1 की बात करें तो 1 पे एट 1 x-1 कितना है, 1 पे x-1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2.5 ले लो, 3.9 ले लो, ऑलवेज आपका जो x-1 है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, राइट। सिमिलरली x लेस देन 1 के लिए जो x-1 है वो क्या आने वाला है, नेगेटिव। x लेस देन 1 का मतलब क्या है कि 1 से छोटा लेना है x को, कुछ भी ले लो, 0.5 -1 -0.5, -2 ले लो, -2 -1 -3, अगेन नेगेटिव। तो 1 से छोटा आप x को कुछ भी ले सकते हो, योर आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, 1 से बड़ा कुछ भी ले लो x को, x-1 विल बी पॉजिटिव, 1 पे इट विल बी 0। सिमिलरली इफ विल टॉक अबाउट x-3, x इक्वल टू 3 पे जो x-3 है वो 0 है, x ग्रेटर देन 3 के लिए x-3 पॉजिटिव है, x लेस देन 3 के लिए x-3 नेगेटिव है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये जो फंक्शंस हैं x-1 और x-3, ये x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं कि कब ये पॉजिटिव हैं कब ये नेगेटिव है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बताओ x क्या होगा सच दैट कि x-1 इंटू x-3 का जो प्रोडक्ट है दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। ओके, तो सोचते हैं जी इस क्वेश्चन के बारे में। तो x-1 इंटू x-3, तो हमें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि x-1 x-3 दो पॉइंट्स हैं ऐसे 1 और 3 जो कि हमारे साइन को डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी नंबर लाइन बनाई, या आप ये बोल सकते हो क्या क्या रीजन्स बन गए, दिस इज 1 दिस इज 3। एक तो x लेस देन 1 ये रीजन बन गया, एक 1 से 3 वाला रीजन बन गया, एक 3 या 3 से बड़े वाला रीजन बन गया, राइट। ये 3 रीजन्स की हम बात करेंगे। ओके, एक तो 1 से छोटे की, एक 1 से 3 के बीच में, एक 3 से बड़े की। ओके, यस। सो हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें सोचना है। एक x-1 है, एक x-3 है और एक दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अगर हम x को 1 से छोटा लें, फॉर x लेस देन 1, x को अगर हम 1 से छोटा लें तो x-1 क्या होगा। अगर x को 1 से छोटा लें तो x-1 विल बी नेगेटिव। अभी करके हटे हम लास्ट, अभी हमने देखा था कि जब x-1 में जब x 1 से छोटा था तो x-1 वॉज नेगेटिव। ऐसे ही x-3 अगर आप x 1 से छोटा ले रहे हो तो वो भी क्या है, नेगेटिव है। कोई नंबर लेके देख लो, 0 ले लो, 0 1 से छोटे के लिए,
तो 0 पे इट इज -1 एंड इट इज -3, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव है। बट अगर आप दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे, -1 इंटू -3, अगर दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अगर x हमारा 1 से 3 के बीच में है, x इज फ्रॉम 1 to 3, तो x अगर 1 से 3 में है तो x -1 तो पॉजिटिव हो गया, राइट? और x -3, x 3 से छोटा है तो x -3 विल बी नेगेटिव, x -1 विल बी पॉजिटिव, x -3 विल बी नेगेटिव। और दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। ओके, नाउ इफ x इज ग्रेटर देन 3, अब x हमारा 3 से बड़ा है, अगर x 3 से बड़ा है तो x -1 में कोई भी अगर हम नंबर लें 3 से बड़ा, x -1 3 से बड़ा -1 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। x -3 में अगर हम 3 से बड़ा नंबर डालेंगे, इट विल अगेन बी पॉजिटिव। ओके, सो इफ यू विल take the product of two positive numbers, it will also come out to be positive। तो बेसिकली इस पूरे चार्ट से हमने क्या देखा कि x को जब x 1 से छोटा है तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। अगर x 1 से 3 के बीच में है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। अगर x 3 से बड़ा है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, माई क्वेश्चन वॉज कि बताओ x की ऐसी क्या वैल्यूज लें सच दैट दिस प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो ऐसी x की क्या वैल्यूज लें ताकि ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाए, या तो 1 से छोटा ले लो या 3 से, बेसिकली हम 3 इंक्लूड नहीं कर सकते। वाई वी कांट इंक्लूड 3, बिकॉज 3 पे ये 0 हो जाएगा, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव लेना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लेना चाहते हैं, क्या आंसर आ गया हमारा, x बिलोंग्स टू, या तो आप 1 से छोटा ले लो या 3 से बड़ा ले लो। इसको यहां पे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, राइट? सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। सो बेसिकली इसका जो साइन था वो 1 पे चेंज हो रहा था, इसका साइन 3 पे चेंज हो रहा था। तो हमने तीनों इंटरवल्स की बात अलग अलग से कर ली। पहले हमने सोचा कि 1 से छोटे के लिए क्या क्या हो रहा है, फिर 1 से 3 में क्या क्या हो रहा है, फिर 3 से बड़े में क्या क्या हो रहा है। हमें चाहिए था फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो x है उसको -∞ से 1 यूनियन 3 से ∞ लेना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम इसी लॉजिक से करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास 3 फंक्शंस आ गए, 2, 3 एंड 4। तो वी कैन सी दैट दिस इज 2, 3 एंड 4। ओके, हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, एक x-2 है, एक x-3 है, एक x-4 है, एक तीनों का प्रोडक्ट है, राइट? और हमारे पास x एक तो 4 से बड़ा है, राइट? और एक 3 से बड़ा 4 से छोटा, एक 2 से बड़ा 3 से छोटा, एक x <2, राइट? तो अगर हम 4 से बड़े की बात करें, 4 से बड़े में x-2, x-3, x-4, आप x को 4 से बड़ा कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 5-2, 5-3 और 5-4 तीनों के तीनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम 3 से 4 की बात करें, 3 से 4 में x-2 जो है वो पॉजिटिव है, x-3
अगेन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 3 से 4 में आपने कोई नंबर लिया है, 3 से 4 में सिर्फ किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, सिर्फ x-4 के ऊपर फर्क पड़ेगा, बाकी सब तो अपना साइन सेम ही रखेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर आप 2 से 3 में कोई नंबर लेते हो, 2 से 3 में 2.5, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, 2.5 माइनस 4 नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ओके, फॉर लेस देन 2, x लेस देन 2, तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सभी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमिन द साइन फॉर ऑल ऑफ दीज फंक्शंस इन द कंबाइंड मैनर। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बताओ x की क्या वैल्यू लें ताकि ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आ जाए। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव एक तो इस केस में आ रही है, एक इस केस में आ रही है, तो अपना आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया कि जा तो 4 से बड़ा ले लो या 2 से 3 में ले लो, 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो देखो ये पूरा जो हमने साइन डिटर्मिनेशन किया, हर किसी इंटरवल में एक एक का साइन निकाल के देखना, दिस इज बिट लेंदी, ठीक है। अभी आगे जाके हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, तो वहां पे हम ये ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू डिवाइज सम ऑफ शॉर्ट मेथड, लॉजिकल मेथड। तो उसी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, वैसे टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है, राइट। एक हम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने पूरे वे को, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे से। तो लेट्स डिस्कस दिस मेथड। सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले यू हैव टू फॉर्म दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन है ये x-3/2 लेस देन 1/x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है रैशनल एक्सप्रेशन की, रैशनल एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है f(x/gx)। तो कुछ ऐसा बन जाए f(x/gx) लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक साइड 0 आ जाए और एक साइड रैशनल एक्सप्रेशन बन जाए, देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, फंक्शन बाय फंक्शन लेस देन 0, दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, सो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हमें एक रैशनल एक्सप्रेशन बनाना है और एक साइड हमें 0 बनाना है, क्योंकि अगर एक साइड 0 ना होता, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन में 0 ना होता, कुछ और होता, तो क्या आप ये काम कर सकते थे? नो। 0 से आपको पता लगता है पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 होता तो आपको वैल्यूज फिल कर करके देखनी पड़ती, बट 0 के कारण हमने इजीली बता दिया कि अगर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं तो तीनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऑन वन ऑफ द साइड बेसिकली। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, फिर आगे जाके सोचोगे सॉल्व करने की। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया जी। ओके, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन ये था। नाउ अब अगला पॉइंट क्या है कि अब आपको सोचना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपके पास जो पूरा कंबाइंड फैक्टर है, देखो अब इसको देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, x² - 3x + 2/2x लेस देन 0। फिर उसके बाद जो आपके फंक्शंस बने उसको फैक्टराइज करो, अगर वो फैक्टराइज हो पा रहे हैं तो फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने से क्या बेनिफिट होता है आपको?
फैक्टराइज करने से हमें ये पता चल जाता है कि ये पूरा फंक्शन कब जीरो बन रहा है, कब पॉजिटिव बन रहा है, कब नेगेटिव बन रहा है। जैसे कि हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाला फंक्शन जीरो कब बन रहा है, 1 पे, 2 पे, 0 पे, राइट। तो सबसे अगला काम क्या है, फैक्टराइज करो जितने भी टाइप के एक्सप्रेशंस आपके पास इन्वॉल्व हैं। देन थर्ड स्टेप, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स वेयर fx और gx इज जीरो। कहता है जितने भी पॉइंट्स पे ये सारे आपके पास जो फंक्शंस गिवन हैं ये जीरो हैं, उन सब पॉइंट्स को फाइंड आउट करो। वाई वी नीड टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स। तो ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, और थर्ड वाला 0 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं 0, 1 एंड 2, जहां जहां पे ये फंक्शंस 0 हो रहे हैं, ठीक है। 2x 0 पे 0 हो रहा है, x -1 1 पे 0 हो रहा है, और x -2 2 पे 0 हो रहा है। Why these points are important for us? Because these are critical points. Basically ये पॉइंट्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं ये बताने में कि ये कब फंक्शन पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। सो दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ऐसे सब पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लो। मार्क ऑल दीज पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क करोगे। ओके, ऐसे सब पॉइंट्स पे नंबर लाइन पे मार्क कर लो, और ऐसे पॉइंट्स पे ओपन लगा दो जहां जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे कि आप देखो ध्यान से, ये जो नीचे x आ रहा है, डिनोमिनेटर में जो x है ये 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उन सब के ऊपर एक ओपन लगा दो। यहां पे वो एक ही पॉइंट है जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया, राइट। अभी तक हमने 4 स्टेप्स देखे हैं इस वेवी कर्व मेथड के। सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। दूसरा स्टेप क्या था कि रैशनल उसको क्वाड्रेटिक या लीनियर में फैक्टराइज कर दो। तीसरा स्टेप क्या था, फैक्टराइज करने से फायदा क्या होगा, सीधा पता चल जाएगा कि x की कौन सी वैल्यू है जो कि इसको 0 बना रही है, राइट। थर्ड स्टेप क्या था कि वो पॉइंट्स निकालो जहां पे fx या gx 0 आ रहा है। फोर्थ स्टेप क्या था, मार्क ऑल दोज पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन। These are the 4 steps of wavy curve. अभी आगे समझते हैं। फिफ्थ स्टेप इज कि कोशिश करो कि जो आपके हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो उनके कोफिशिएंट्स पॉजिटिव रहें। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं x -1 में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x -2 में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 2x में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन होता ये, हमारे पास ये क्वेश्चन होता x -1 2 - x x -5 <0, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या था कि फैक्टराइज कर लो, कोई इशू नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था, वो पॉइंट्स निकालो जहां जहां पे ये 0 हो रहा है, 1 पे 2 पे एंड 5 पे 0 हो रहा है। फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट योर ट्राई शुड बी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता। तो इफ यू वांट टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, तो आपको माइनस आपको यहाँ से बाहर लेना पड़ेगा। और अगर आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, राइट। सो एक्चुअली दिस इज सेम एज दिस, जस्ट लिखने का तरीका अलग है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने भी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उन सब के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हों। वो बनेंगे कैसे पॉजिटिव, -1 से मल्टीप्लाई करके, राइट। देन ओके, देन अ वेवी कर्व इज ड्रॉन। अब वेवी कर्व ड्रॉ करनी है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने नंबर लाइन पे मार्क कर लिया 1 2 एंड 5। ओके, तो 5th स्टेप तक हमारा काम हो चुका है। अब देखो वेवी कर्व का क्या लॉजिक है, सिंपल सी बात है। 5 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव है, x -1 पॉजिटिव, x -2 पॉजिटिव, 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, x -1 x -2 x -5,
ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो 5 से कोई भी बड़ा नंबर हमने लिया, तीनों के तीनों पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब 5 से बड़े के लिए हमारी वेवी कर्व पॉजिटिव है। फिर 5 पे क्या हुआ, 5 पे ये 0 हो गई, 5 पे ये 0 हो गई, ठीक है। फिर 5 से छोटा कोई नंबर लेके देखते हैं, 4 लिया आपने, लेट्स सपोज 4 पे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, बट दिस इज नेगेटिव। 4 पे ये दो नंबर्स पॉजिटिव हैं बट तीसरा नेगेटिव है, इसी कारण तीनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नेगेटिव। तो 4 पे ये वेवी कर्व नीचे आ गई, राइट, वेवी कर्व नीचे आ गई। 2 पे क्या हुआ, 2 पे अगेन इट विल बिकम 0। 2 के लेफ्ट में क्या होगा, 2 के लेफ्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। 2 के लेफ्ट में वो फिर से ऊपर चली गई। फिर 1 के लेफ्ट में क्या होगा, तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो होल थिंग इज नेगेटिव। ऊपर वाले जो रीजन्स हैं उनमें पॉजिटिव डाल दो, नीचे वाले में नेगेटिव डाल दो, राइट। तो अभी ये जो पॉइंट लिखा है 7th पॉइंट, इसको भी आगे जाके समझते हैं। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड वेवी कर्व। क्या करना है हमें सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वेवी कर्व बना देनी है, ओके। अब देखो हमने जो क्वेश्चंस साइन डिटर्मिनेशन से किए थे वो वेवी कर्व से करके देखते हैं। वेवी कर्व से करके देखते हैं, तो बताओ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें नंबर लाइन पे मार्क करना पड़ेगा। वो पॉइंट जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहे हैं, दैट इज 1 and 3, ओके। 3 के राइट में देखें, अगर हम 3 के राइट में ये इसमें कोई भी वैल्यू डालो, 3 से बड़ी इसमें कोई भी वैल्यू डालो, आंसर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो वेवी कर्व कहाँ से शुरू होगी, ऊपर से। 3 पे 0 हो गया, 1 से 3 में कोई भी नंबर डाल लो, 2 डाला आपने, लेट्स सपोज 2 - 1 पॉजिटिव, 2 - 3 इज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव हो गया, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, you can check answer was this. So you can see the compatibility of this method, very easy, very quick method, जो कि हमें बहुत easily आंसर दे सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। Yes, let's talk about it. So now we have the critical points 2, 3 and 4. So we can easily check that for any value of x greater than 4, all of these parameters x - 2, x - 3, x - 4, they all will be positive. So my wavy curve will start from above the x-axis. 4 पे 0 होगी, 4 के लेफ्ट में 3 से 4 में ये नेगेटिव हो गई। क्या रीज़न है इसके नेगेटिव होने का, क्योंकि x - 4 का साइन चेंज हो गया। 3 पे ये फिर से पॉजिटिव होगी, क्या रीज़न है, फिर से साइन चेंज हो गया। 2 पे ये फिर से नेगेटिव होगी, क्या रीज़न है, फिर से साइन चेंज हो गया x - 2 का, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो आंसर क्या आ गया, हमें तो पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, हमें तो ग्रेटर देन 0 लेना है। तो 2 से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। सो दिस मेथड इज वेरी इजी to apply, but the logic should be clear. Let's try this question. अभी आपको समझ में आएगा इस पॉइंट का मतलब, 7th पॉइंट का मतलब, ठीक है। So in this question also you can check that all of the this expression is in the standard form, right, and they are already factorized into linear or quadratic factors. And we already know about the points at which these expressions are 0. And what are those points? X - 2 will be 0 at 2, x will be 0 at 0, and x + 1 will be 0 at -1. So these are the points, we have marked them on the number line. अब आगे का काम करते हैं। अब देखो 2 से बड़ी वैल्यू अगर हम लें,
अगर हम इसमें 2 से बड़ी वैल्यू लें तो इट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. सो माई वेवी कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द एक्स एक्सिस. 2 के लेफ्ट की अगर हम बात करें, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली हमने, लेट्स सपोज क्या लें, 2 से छोटी वैल्यू, टेक 1. 0 और 2 के बीच की लेनी है, 1 ले लो. सो क्या बन गया ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 प्लस 1. इट विल बिकम 1 1 2. आंसर इज 2. आंसर इज 2. राइट. सो वी कैन सी दैट कि 2 के राइट में भी आंसर पॉजिटिव आ रहा था और 2 के लेफ्ट में भी आंसर पॉजिटिव आया. ऐसा कैसे हो गया? हमने तो पढ़ा था कि हर वैल्यू पे साइन चेंज होगा, हर वैल्यू पे साइन चेंज हो रहा था, बट यहां पे तो साइन चेंज नहीं हुआ. तो 2 पे भी ये बेबी कर्व ऊपर को चली गई. फिर 0 पे, 0 के लेफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव. साइन चेंज हुआ, -1 पे फिर से साइन चेंज हुआ. आंसर क्या आ गया? माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 0 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी. सो जब भी रूट की पावर इवन होगी, ये क्या है हमारा इवन पावर्ड रूट है, जब भी रूट की पावर इवन होगी उस केस में क्या होगा, जो इवन पावर्ड रूट है x माइनस 2 का स्क्वायर, चाहे आप x को कुछ भी डाल दो इसमें, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो एक्चुअली इसका साइन चेंज नहीं हो रहा. ऑड पावर्ड रूट पे साइन चेंज होगा, इवन पावर्ड रूट पे साइन चेंज नहीं होगा. तो इवन पावर्ड रूट पे हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ऑड पावर पे हम साइन चेंज करेंगे. इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द वेवी कर्व एंड वी कैन पिक द आंसर as per question, as it is mentioned in the question that we have to take the part of x for which this expression is greater than 0. So we will take the part of x as minus infinity to -1, union 0 to 2, union 2 to infinity. Okay, next question using wavy curve. Okay, so as I have already told you that you cannot take x minus 1 on the other side. This step is wrong. Why wrong? Because we are not sure about the sign of x minus 1. It may be positive, it may be negative, and we can't multiply a number, ambiguous number, both sides in case of inequality, because in case of positive number inequality will remain same, but in case of negative number inequality will change. So that's why we cannot directly multiply x माइनस 1 बोथ साइड्स. तो अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा था माइनस या प्लस कुछ भी करो दोनों साइड कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ये बन गया 1 माइनस 2x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. ये बन गया 3 माइनस 2x बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0. ये बन गया 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1. देखो एक माइनस का साइन आया यहाँ पे, माइनस के साइन को जब मैंने उधर लिया तो यहाँ पे बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0. राइट, माइनस के साइन ने क्या किया, इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, क्योंकि माइनस हमने यहाँ से कॉमन निकाल के दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, अब अगला स्टेप तो हमें पता ही है, मार्क ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन. बट जो 1 है आपका 1, दिस 1 विल बी एक्सक्लूडेड. वाई 1 क्यों नहीं ले सकते हम? क्योंकि 1 अगर हम x को डालेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर को 0 बनाना इज नॉट अलाउड. तो 1 को हम 1 के ऊपर हमने इसीलिए क्या लगा दिया, ओपन लगा दिया. ठीक है, तो वेवी कर्व को स्टार्ट करते हैं. 3/2 से बड़े के लिए इट विल बी पॉजिटिव, 3/2 पे इट विल चेंज इट साइन, 1 पे ऑल्सो इट विल चेंज इट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. बट हमें तो आंसर क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था. तो आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी. ये 3/2 पे क्लोज क्यों लगा दिया, यहाँ पे तो ओपन लगाया, यहाँ पे क्लोज लगा दिया. 3/2 पे हमने क्लोज इसलिए लगाया है क्योंकि 3/2 को अगर हम फंक्शन में डालेंगे, 3/2 जब हमने इनपुट करा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा.
और 0 हमें लेना है, वी हैव टू इंक्लूड 0, क्वेश्चन में 0 पे इक्वल है, तो इसीलिए हम 3/2 को भी लेंगे, बट हम 1 नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज 1 लेने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वी कांट अफोर्ड विद द 0 डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? सो ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, वीवी कर्व की क्वेश्चंस हैं, तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, सिर्फ पॉइंट्स को मार्क करना है क्रिटिकल पॉइंट पे और वीवी कर्व को घुमाना है और आंसर पिक करना है। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस इजी टास्क। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां जहां पे इसके फैक्टर 0 हो रहे हैं? x विल बी 0 एट 0, 2x + 1 विल बी 0 एट -½ ठीक है, 2x + 1 = 0, x = -½ x - 1 will be 0 at 1, x - 2 will be 0 at 2। सो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, बट अभी एक काम रहता है, क्या? डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स के ऊपर ओपन लगाते थे हम, है ना? तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट कौन है? 1, इसके ऊपर हमने ओपन लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। अब सबके कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो 2 से बड़े नंबर डालने पे पक्का से आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वेवी कर्व चलाओ, और आपको पता है सभी के सभी रूट्स ऑड पावर्ड हैं, सभी के सभी रूट्स ऑड पावर्ड हैं, सभी की पावर ऑड है, तो हर किसी पे साइन चेंज होगा ही होगा। आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -∞ to -½ यूनियन 0 to 1 यूनियन 2 to ∞। ओके, तो सिर्फ मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया, -½ को, 0 को और 2 को, सब पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, क्योंकि सब पॉइंट्स के ऊपर ये 0 बन रहा है, ठीक है। और बाकी जो पॉजिटिव वाले इंटरवल थे वो इंक्लूड कर दिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आंसर भी यही पूछा था कि x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें? सबसे पहले इसमें हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, राइट? ये क्या बन जाएगा? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या बनेगा? x + 1 × x + 3। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या बनेगा? x + 1 × x + 5। और नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? x + 5 × x + 1 का स्क्वायर। अब ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब सोच सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे। क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स? एक तो -5 है, एक -3 है और एक -1। अगर आप x को -1 से बड़ा लेते हो, अब ध्यान से देखना है, ठीक है? इसको ऐसे हम काट नहीं सकते। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि -1 कैन नॉट बी एंटर्ड बिकॉज इट इज देयर इन द डिनोमिनेटर। x + 5 भी डिनोमिनेटर में है, तो -5 के ऊपर भी क्या आएगा? ओपन आएगा, राइट? अब देखिए, -1 से बड़ा कुछ भी लेंगे इट विल बी पॉजिटिव, तो वेवी कर्व कहां से शुरू होगी? ऊपर से। अब ये सोचिए कि -1 इवन पावर्ड रूट है या ऑड पावर्ड रूट है। जब x + 1 की बात करें, अगर x + 1 कितनी बार है क्वेश्चन में? 1 2 3 4, तो x + 1 की पावर 4 है। इसका मतलब ये है कि x + 1 इज अ इवन पावर्ड रूट, मतलब -1 इज दी इवन पावर्ड रूट, -1 पे साइन चेंज नहीं होगा। आप डाल के भी दे सकते हो, -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालो कोई भी, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, -1 पे साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर -3 पे देखते हैं। -3 तो एक ही बार आ रहा है, -3 की तो पावर ऑड है, -3 तो एक ही बार आ रहा है रूट, तो -3 पे साइन चेंज होगा। और -5 पे, -5 जो है वो 2 बार आ गया, एक बार यहां पे एक बार यहां पे। लेट्स सपोज ये वाला -5 साइन चेंज करेगा तो ये वाला भी कर देगा, तो दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा।
तो -5 दो बार है, -5 इज द इवन पावर्ड रूट, इवन पावर्ड रूट पे वेवी कर्व का साइन चेंज नहीं होता, इट इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड वी हैव टू टेक द नेगेटिव आंसर, नेगेटिव आंसर लेना है। तो नेगेटिव आंसर क्या आ गया, -∞ से -5 यूनियन, एक तो -∞ से -5 यूनियन, -5 से -3 यूनियन, एक तो -5 से छोटा, एक -5 से -3 में, और एक, अच्छा वैसे ये नेगेटिव वाला आंसर ये हो गया, बट आप ये मानते हो कि हम 0 भी हमें इंक्लूड करना है, तो हम -3 भी इंक्लूड करेंगे, तो -3 को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, राइट। सो दिस इज द आंसर, राइट, दिस इज द आंसर, वी हैव टू टेक द नेगेटिव आंसर। तो आप चेक कर सकते हो, -5 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, लेट्स सपोज आपने -6 ही ले लिया, -6 लेने पे इट विल बी नेगेटिव, रेस्ट ऑल विल बी पॉजिटिव, सो द होल आंसर विल बी नेगेटिव। मान लो आपने -4 ले लिया, -4 पे अगेन दिस विल बी नेगेटिव, रेस्ट ऑल विल बी पॉजिटिव, ओके। सो सिर्फ -5 नहीं ले पा रहे क्योंकि -5 लेने पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, तो ये ट्राई कीजिए आप खुद से with the method I have already told you. You just have to draw the wavy curve using the steps that are to be followed, okay. So what are the steps? So firstly mark all the critical points on the number line, and what are those critical points? Critical points वो points होते हैं जहां पे given expressions 0 होते हैं, राइट। तो हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हमारे पास, एक तो -5 आ गया, एक -4 आ गया, एक -1/3 आ गया, और एक 2 आ गया, ओके। जिसमें कि -5 और -1/3 दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है, तो उसके ऊपर हमें ओपन लगाने पड़ेंगे, तो हमने ओपन लगा दिए, राइट। देन फॉर x ग्रेटर देन 2, फॉर x ग्रेटर देन 2 यही पॉइंट्स आएंगे, एक रह गया 0, फॉर दिस वी हैव 0, राइट, 0 रह गया हमारे पास, 0 ये रहा, ओके। -5 -4 देन -1/3 देन 0 देन 2। अब 2 के राइट में हर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो 2 के राइट में जो वेवी कर्व है वो ऊपर से स्टार्ट होगी, राइट, वेवी कर्व ऊपर से स्टार्ट हुई, और साइन चेंज करेगी या नहीं करेगी किस पे डिपेंड करता है कि रूट की पावर ऑड है या इवन है। तो रूट 2 जो ये 2 है, 2 की पावर ऑड है, तो साइन चेंज करेगी। 0 पे साइन चेंज करेगी या नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगा, x² पे, x², x की पावर 2 है जो कि इवन है, तो 0 पे साइन चेंज नहीं करेगी। -1/3 पे, -1/3 की पावर भी इवन है, इसके ऊपर भी साइन चेंज नहीं करेगी। -4 के ऊपर भी पावर इवन है, इसके ऊपर भी साइन चेंज नहीं होगा। -5 की पावर ऑड है, इस पे ऊपर साइन चेंज हो जाएगा। हमें आंसर किसका लेना था, पॉजिटिव का, और नेगेटिव का आंसर लेना है। सो व्हाट इज द आंसर, -5 to -4, -4 to -1/3, -1/3 to 0, 0 to 2। तो ये चारों के चारों जो इंटरवल्स हैं, ये चारों इंटरवल्स में जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आप देख सकते हो -5 से -4, -4 से -1/3, -1/3 से 0, 0 से 2, सबके सब इंटरवल्स में आंसर इज नेगेटिव। क्यों ऐसा हो रहा है, 2 के राइट में आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है, या फिर -5 के लेफ्ट में आंसर इज पॉजिटिव, और बीच में जितने भी इंटरवल्स हैं उन सब इंटरवल्स के लिए आंसर इज नेगेटिव। हमने ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए, -4, -1/3, 0, ठीक है, ये क्यों इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इनके ऊपर हमारे फंक्शन जो हैं वो 0 बन जाएंगे, राइट।
तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, इसके बेस्ड हमें वेवी कर्व की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वेवी कर्व मेथड. 5x minus 1 by x square plus 3 is less than 1. So ये जो आपके पास लेस देन 1 है, एज वी हैव डिस्कस्ड कि हम x स्क्वायर प्लस 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट? तो हम -1 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो यहां से हमारे पास बन गया 5x minus 1 minus x square minus 3 by x square plus 3 less than 0. It will become minus x square plus 5x minus 4 by x square plus 3 less than 0. तो जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन 0 कैसे आ गया? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 क्यों आ गया? बिकॉज यहां से हमने माइनस साइन क्या लिया है? कॉमन लिया है. ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 1 x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0. राइट? सो आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. अब आप ध्यान से देखिए, नाउ यू हैव टू मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें तो 1 और 4 मार्क हो गए. एक्स स्क्वायर प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 फंक्शन है हमारे पास, ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है. चाहे आप एक्स की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करो, इट विल नेवर बी नेगेटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस 3 करने से हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा. तो इसीलिए इसका कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं. वेवी कर्व में हम कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं? वो पॉइंट्स जहां जहां पे हमारे साइन चेंजेस हो रहे हैं. तो इसका तो कोई साइन चेंज होगा ही नहीं, सो वी कैन इग्नोर दिस पॉइंट. ओके, सो 1 और 4 पे अगर हम देखें, 4 के राइट में इट विल बी पॉजिटिव, देन इट विल बिकम लाइक दिस. ओके, तो आंसर आ गया. आंसर आ गया कि जा तो 4 से बड़ा ले लो या 1 से छोटा ले लो फॉर कीपिंग दिस पॉजिटिव. आप चेक भी कर सकते हो, कोई वैल्यू 4 से बड़ी लेके देखो. 5 ले ली, लेट्स सपोज आपने. 5 इंटू 5 25 माइनस 1 24, 24 डिवाइड बाई 28, इट इज लेस देन 1. सिमिलरली 1 से छोटी कोई वैल्यू लेके देखो, 0 लेके देख लो, तो ये क्या बन गया? -1 डिवाइड बाई 3, वो भी 1 से छोटा है. तो जो हमने आंसर निकाला है दैट इज परफेक्टली राइट. -∞ से 1 यूनियन 4 से इंफिनिटी. ओके, राइट? तो अब हमारे पास आता है ये क्वेश्चन, x प्लस 7 बाई एक्स माइनस 5 प्लस 3x प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो कभी भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हों, यू जस्ट हैव टू टेक दी एलसीएम. एलसीएम लेना है हमें, ठीक है? जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बिकम लाइक दिस. राइट? So when we will solve this question, it will become 2x plus 14 plus 3x square minus 15x plus x minus 14x minus 5 divided by 2 into x minus 5 greater than equal to 0. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, it will become 3x square minus 12x, 14 minus 5 is 9 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब हम 3 को कॉमन लेंगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये 2 को हमने यहां से इग्नोर कर दिया. ठीक है, तो अपने पास अब पॉइंट्स आ गई, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो when we will plot these points on number line, these points are 1 3 and 5, 1 3 and 5. 5 के राइट में, 5 के राइट में हमारे पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. 5 के राइट में आंसर विल बी पॉजिटिव. तो वेवी का कहां से शुरू होगी? ऊपर से स्टार्ट होगी.
5 पे साइन चेंज, 3 पे फिर से साइन चेंज, 1 पे फिर से साइन चेंज, ओके 1 पे फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। हमें बोला गया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द नेट आंसर, व्हाट इज आंसर 1 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 1 से 3 क्लोज क्लोज, 1 से 3 तक के सारे पॉइंट्स लेने हैं, 1 भी लेना है 3 भी लेना है, 5 से इन्फिनिटी, 5 ओपन इन्फिनिटी ओपन। So this is the answer for this particular question. Okay, so we have discussed plenty of questions on this particular concept wavy curve, and this concept is very important for the further chapters like quadratic equations, logarithm, modulus. In those functions you will face these types of problems. Okay, so wavy curve method is applicable everywhere, so it is very important. So practice good quality questions on this particular concept. Okay, thank you.